Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the Watson and Crick model of DNA, or the well-known double helix model of DNA. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed the well-known structure of DNA. Their model explained how genetic information is stored and transmitted from one generation to the next one. Their work was based on Cheragov's rule, X-ray diffraction, data of Rosalind Franklin, and third one we have chemical properties of nucleotide. If we want to describe the structure of the DNA, then we can say as DNA as a double-stranded helical molecules, double-stranded, two strands are present in it. If we come on the components of DNA, then first we have nitrogenous bases. As we have discussed before in chromosome structure, we have two major components, purines and pyrimidines. In purines, we will discuss adenine and thymine. Adenine and guanine, not thymine, adenine and guanine. Adenine will be represented by A and guanine will be represented by G. Adenine, guanine and pyrimidines consist of thymine and cytosine. Then we have deoxyribose sugar and phosphate groups. Deoxyribose sugar and phosphate groups are present in the backbone of these both strands. These combine to form one nucleotide, nitrogenous bases. All of these adenine, guanine, cytosine, thymine, all of these, four of these join together to form the nitrogenous bases, and then in the form of purines and pyrimidines. After that we have sugar phosphate backbone, phosphate group, and sugar in the form of deoxyribose or pentose sugar, we can say. All of these, four of these, for this one nitrogenous bases and two these elements combine to form one nucleotides, and repeatedly, if you can see in the diagram, these are present in the repeated condition. So if these are present repeatedly, then they will able to form long chain of DNA, or we can say DNA is a polynucleotide chain of nucleotides. Now come on the structure of DNA according to the Watson and Crick model. Number 1, as we discussed, double helix DNA. DNA double helix strands, I should say. DNA consists of two long strands. You can see in the diagrams on both sides of nitrogenous bases, two long strands are present. These twisted around each other like a spiral ladder. These are not in H-shaped. H-shaped में हमें नहीं मिलता ये, बल्कि ये twisted, spirally twisted around each other to form a spiral ladder. After that, we have anti-parallel strands. Anti-parallel strands, two strands run in opposite direction. Opposite direction, it means 5' always to the 5'. In the next diagram, we will discuss 5' always runs to the 3' and 3' always runs to the, यहाँ पे हमें ये नज़र आएगा पायरिन्स और पायरामाइड्स के स्ट्रक्चर में ये 3 की पोजीशन है, और यहाँ पे हमारे पास 5 की 3 की पोजीशन है, ये 5 की पोजीशन है. सो अकॉर्डिंगली पायरिन्स एंड पायरामाइड्स runs 5' always to the 3' and 3' always to the 5'. This arrangement is called anti-parallel orientation. Here we use the word prime. यहाँ पे हमने prime का word use किया. Prime, this arrangement is called the anti-parallel orientation, and prime indicates the carbon number of deoxyribose sugar that determines direction of the DNA.
ये 3 की पोजीशन, 3 और 5 की पोजीशन जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन केस ऑफ बेंजीन रिंग वी इंडिकेट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6. सो अकॉर्डिंगली डबल स्ट्रैंड्स भी हैं, डबल बेंजीन रिंग भी हैं और सिंगल रिंग भी है. इन बोथ दिस कंडीशन दे ऑलवेज अटैचमेंट के दौरान, स्पाइरल क्वाइलिंग के दौरान, स्पाइरल मूवमेंट के दौरान ये हमेशा 3 ऑलवेज मूव्स टू द 5 और 5 ऑलवेज मूव्स टू द 3. In this way, adenine always combine with the thymine and thymine always combine to the adenine. इसी तरह guanine always combines to the cytosine and cytosine always combines to the guanine. Sugar phosphate bond. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को. और शुगर फॉस्फेट बॉन्ड हमें कहाँ सही तरीके से विजिबल होगा, ये यहाँ पे शायद, हाँ जी, sugar phosphate bond. Sugar phosphate are present in the ladder. The outer sides of DNA के दोनों तरफ के जो हमारे पास strands हैं, this one and this one, alternating sugar and phosphate, they are joined by a special type of phosphate and sugar. Both of these joined together with the help of a special type of bonds. और उस bonds को हम नाम क्या देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का नाम हम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस वन sugar and phosphate, both of these unite together and these are with the help of, तो ये bonding जो है ये कहलाती है phosphodiester bonds. This provides strength and stability. इसका काम क्या है, ये strength और stability देगा. उसके बाद फिर हमने जैसे नाइट्रोजीनियस बेसिस को डिस्कस किया, तो नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑलवेज प्रोजेक्ट इनवर्ड्स एंड पेयर्स विद ईच अदर टू फॉर्म लाइक स्टेप्स ऑफ द लेडर. ये बिल्कुल लेडर्स के स्टेप्स के दरमियान में ये दो स्टैंड है लेडर के, स्पाइरली जो जिनकी अरेंजमेंट है, और दरमियान में ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, 4 इन नंबर्स हैं, जिसमें एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद द थाइमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज कंबाइन विद द गायनिन. जबकि प्योरिन्स और पायरामाइडिन्स की बात करें तो प्योरिन्स पे हमारे पास एडेनिन एंड ग्वानिन, और प्योरामाइडिन्स पे हमारे पास आ जाती है थाइमिन एंड साइटोसिन. तो हम ये कह सकते हैं कि ये अल्टरनेटली एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं. एडेनिन पेयर्स विद द थाइमिन्स. हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स एडेनिन और थाइमिन के दरमियान वीक बॉन्डिंग है. जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन दिस बेसिस. नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान में जो वीक बॉन्डिंग है, और वो वीक बॉन्डिंग भी क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, ये सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है, और दे बोथ ऑफ दिस स्ट्रैंड्स हैव टू सेपरेट ईच अदर. इन्हें रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एक दूसरे से अलग होना होता है, ताकि अगेन न्यू जनरेशन में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास हो सके. जैसे फॉर एग्जांपल 23 पेयर्स हैं हमारे पास ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम्स, और इट मीन्स के 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. तो 46 क्रोमोसोम शुड बी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट यंग वंस. तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनकी नेक्स्ट कॉपीज़ बने. तो यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के तौर पे अलग होना होता है, एंड दे विल हैव टू प्ले द रोल ऑफ टेम्पलेट के तौर पे ये अपना काम परफॉर्म करेंगे. दैट इज़ द रीज़न वीकेस्ट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन देम, जिसमें सम यहाँ एडेनिन थाइमिन के दरमियान में 2 बॉन्ड्स हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में हमें कितने बॉन्ड्स नज़र आते, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. इस पेयरिंग के स्टाइल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट डायमीटर. अब हम डायमीटर की बात करते हैं, इन विच पैटर्न दीज आर, कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और विच टाइप ऑफ ग्रूव्स आर. ये जो कर्व्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये हम इन्हें ग्रूव्स कहते हैं. अब यहाँ पे कांस्टेंट डायमीटर, कैसे कांस्टेंट डायमीटर है, प्योरिन्स ऑलवेज पेयर्स विद द पायरामाइडिन्स. जैसे हमने कहा एडेनिन एक मेंबर एडेनिन प्योरिन्स का लिया, और एक मेंबर हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस की अरेंजमेंट में किसका आ जाता है, 1 पेयर फ्रॉम द pyrimidines. Purines always pass with the या pairs with the pyrimidines. This keeps, इसकी वजह से हमारे पास जो width होती है वो हमेशा constant रहती है. एंड आफ्टर दैट हेलिकल टर्न्स की हम बात करते हैं. तो ये जो constant width है ये कम अज़ कम कितनी होती है, इट इज़
20 एंगस्ट्रम। 20 एंगस्ट्रम का वर्ड हम इसके लिए दिस वन, ये विथ जो है हमारे पास ये कंटिन्यूसली आ रही है कितनी 20, डायमीटर इसका आ रहा है 20 एंगस्ट्रम। उसके बाद हम बात करते हैं हेलिकल टर्न्स की, कि इन विच पैटर्न दे वन फुल टर्न्स दे हैव इट विल हैव टू टेक एटलीस्ट आफ्टर 10 पेयर्स। ये 10 पेयर्स पे तकरीबन ये एक टर्न लेता है, जिसकी जो हमारे पास मेजरमेंट आती है वो 34 एंगस्ट्रम है। और एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, और दो बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास आता है वो है 0.34, 0 पॉइंट यहाँ पे मेंशन 0.34, और यहाँ कहीं देखें कहीं पे रिप्रेजेंट हो, बहरहाल इनके दरमियान डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर्स के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आएगा 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर में भी बात कर सकते हैं, अगर हम नैनोमीटर के बजाय हम बात करें इसमें एंगस्ट्रम में, तो फिर हमारे पास मेजरमेंट कम अज़ कम इसकी टर्न की आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसने यहाँ पे ये टर्न लिया है, आफ्टर दैट तो ये हमारे पास 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम में कम अज़ कम ये हमारे पास 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं, 4 इसमें 4 इसमें और 2 इसमें, तो कम अज़ कम हमारे पास 10 बेस पेयर्स के बाद ये एक कंप्लीट टर्न लेगा जो यहाँ पे विजिबल है। उसके बाद फिर हमारे पास मेजर एंड माइनर ग्रूव आ जाते हैं। मेजर ग्रूव दिस वन जो यहाँ पे है, और माइनर ग्रूव ये कहलाता है मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव, बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट। मेजर ग्रूव प्रोटीन बाइंडिंग साइट, मेजर ग्रूव हमेशा कहाँ होगा, प्रोटीन बाइंडिंग साइट पे, और माइनर ग्रूव की हेल्प्स इन रेगुलेशन, रेगुलेट करने में, रिपीटेड सीक्वेंस बनाने में मदद देता है। इसके अलावा ये ग्रूव्स हेल्प करते हैं एंजाइम रिकॉग्नाइज डीएनए के, एंजाइम्स किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा था, आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा था, all of these are able to work properly when due to the presence of these groups, इन ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से होता है। उसके बाद हम केमिकल बॉन्ड्स की तरफ आ जाएं। वी डिस्कस्ड बिफोर कि केमिकल बॉन्ड्स इन स्ट्रैंड्स में मौजूद है। इट इज़ नॉन एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये किस में है, ये बिकॉज यहाँ पे हमें फॉस्फेट ग्रुप बैकबोन कंबाइंड कंडीशन में शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ मिलती है, तो इनके दोनों के दरमियान शुगर एंड फॉस्फेट के दरमियान में जो बॉन्ड है इट इज़ नॉन एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आई टोल्ड यू बिफोर के वीकेस्ट बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड की वजह से ये नाइट्रोजन बेसिस, बिकॉज दे हैव बोथ ऑफ these strands have to separate from each other. That is the reason hydrogen bond sometimes for example in case of guanine and cytosine 3, and in case of adenine and thymine 2 hydrogen bonds are present. अब अगर हमने बात की कि दिस वर्क बेस्ड ऑन कैरगोस रूल्स, तो समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन चैरागोस भी कहते हैं, लेकिन ये सपोर्ट करता है हमारे डीएनए के मॉडल को। और ये सपोर्ट किस तरीके से करता है, इट सेज कि ए कैपिटल ए एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। बोथ ऑफ दीज आर इक्वल फ्रॉम ईच अदर, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल फ्रॉम ईच अदर। इससे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डीएनए के पैटर्न आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। एंड वॉटसन एंड क्रिक मॉडल किसको फॉलो करता है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल फॉलो द बी डीएनए, जो कि हमारे पास राइट हैंडेड है, कॉमन टाइप है, एंड इट बिलोंग्स टू या कंसर्न्स टू द नॉर्मल सेलुलर डीएनए भी इसे कहा जाता है। और इन सारी डिटेल से हमें पता चलता है कि कैरगोस रूल्स आर इन द सपोर्टिंग कंडीशन। उसके बाद हम देखते हैं कि इस मॉडल के थ्रू विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द रेप्लिकेशन में किस तरीके से हम जस्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं इसमें। नंबर 1, द मॉडल एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये आ जाता है कि इसके अलावा भी हम इसमें भी देख सकते हैं, और इसमें भी हमें लिटिल बिट ये सेपरेशन सबसे बेहतर यहीं पे है कि हम यहाँ पे इसे स्टडी करें। ठीक है, अब यहाँ पे 1 स्टैंड सेपरेट्स, ये दरमियान से एक स्टैंड जो होगा ये अलग हो जाएगा। 1 स्टैंड सेपरेट्स ईच स्टैंड एक्ट्स एज। अब ये 2 स्टैंड्स अलग अलग हैं, दोनों स्टैंड्स में या इसमें हम देखें कि ये दोनों स्टैंड्स आपस में अलग अलग हो गए। अलग होने की वजह से बोथ ऑफ दीज स्टैंड्स प्ले एज अ रोल ऑफ टेम्पलेट। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स विल बी फॉर्म्ड
सो ईच DNA हैज़ वन ओल्ड। अब हमारे पास जो नई कॉपी बनेगी फ्रॉम 1 to 2 स्ट्रैंड्स, क्योंकि ये दोनों अलग हो गए, अब हर एक ने अपने अपने स्ट्रैंड्स को के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को दोबारा से फॉर्म कर लिया। इस तरह इंस्टेड ऑफ 1 वी हैव 2, हमारे पास 2 DNA के स्ट्रक्चर आ गए। नाउ ईच हैज़ वन ओल्ड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। अब इसकी इम्पोर्टेंस अगर इस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की देखें तो नंबर 1 इट एक्सप्लेन्ड जीन स्ट्रक्चर। इसके थ्रू आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये जीन स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करता है। अब जीन क्या है? जीन इनहेरिटेंस यूनिट है, हेरिडिटरी यूनिट है। अब यहाँ पे सेकंड इसने एक्सप्लेनेशन दी डीएनए रेप्लिकेशन की, एज वी डिस्कस्ड। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं इट ऑल्सो गिव्स द बेस ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा इट हेल्प्स इन म्यूटेशन चेंज अपेयर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस, फ्रॉम जीन टू जीन। जो चेंज अपेयर्स होते हैं या फिर वेरिएशंस आती है वो म्यूटेशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए फाउंडेशन का काम करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन एक्सप्लेन हेरिडिटरी मैकेनिज्म। हेरिडिटरी मैकेनिज्म को ये एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे पायरिन्स और पायरामाइडिन्स की हमने बात की थी। पायरिन्स को देखें तो ये हमारे पास आ जाता है, इसमें इंक्लूड है एडेनिन एंड गाइनिन। इट हैव 2 बेंजीन रिंग, डबल बेंजीन रिंग है, और इसमें आप डबल बेंजीन रिंग के अलावा इसमें 2 एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हमारे पास कार्बन है। दैट इज़ द रीज़न वी कॉल्ड इट हेट्रोसाइक्लिक। हम इसे क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का रीज़न यही है कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन भी है और जहाँ पे एम्प्टी स्पेसिस आपको नज़र आ रही है वहाँ पे कार्बन इज़ प्रेजेंट। सो वी कैन से 1 3 7 9 पोजीशन पे इनको अगर नंबर्स दे, 6 कार्बन एटम कैन बी यूटिलाइज्ड इन बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे 9 नंबर्स पे हमें 1 3 7 9 नंबर्स पे 4 ऑफ दिस प्लेसेस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। इसी तरीके से पायरामाइडिन्स जो है इसमें हमारे पास साइटोसिन और थायमिन आ जाती हैं। ये सिंगल कार्बन है, इसमें भी सेम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। 6 एटम कंपाउंड्स है, सिंगल कार्बन, सिंगल बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट। यहाँ पे 4 एटम्स हमें कार्बन के मिल जाते हैं एंड 2 एटम्स आर प्रेजेंट फॉर नाइट्रोजन के मिल जाते हैं। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर क्लियर। अब हम एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की इंट्रोडक्शन देख ली, उसके बाद फिर हमने देख लिया कि क्या क्या इसकी कंपोजिशन में, इसकी बेस में कौन से पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, कौन से साइंटिस्ट आ जाते हैं, कौन से रूल्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने इसके कंपोनेंट्स देख लिए। कंपोनेंट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस आ गई जिसमें हमने प्योरीन्स एंड पायरामाइडिन्स को डिस्कस कर लिया। एंड आफ्टर दैट वी हैव, और इसके बाद फिर हमने स्ट्रैंड्स को देख लिया, क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रैंड्स है, और हेलिकल स्ट्रैंड्स के साथ साथ हमने कुछ पॉइंट्स भी साथ साथ डिस्कस कर लिए। जैसे फर्स्ट हमारे पास था डबल हेलिक्स का, सेकंड हमारे पास था एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, थर्ड हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन को देख लिया, नाइट्रोजीनियस बेसिस को देख लिया। नाइट्रोजीनियस बेसिस के अलावा हेलिकल टर्न्स को हमने देख लिया, उसकी विड्थ और लेंथ देख ली हमने। मेजर और माइनर ग्रूव्स को भी स्टडी कर लिया। मेजर एंड माइनर ग्रूव्स को भी हमने देख लिया कि विच टाइप ऑफ ग्रूव्स आर कॉल्ड द मेजर ग्रुप्स एंड विच ग्रूव्स आर कॉल्ड द ग्रुप नहीं बच्चे, ग्रूव्स आर कॉल्ड द माइनर ग्रूव्स। ये जैसे कर्व्स हैं, दीज आर नॉन एज द माइनर एंड मेजर ग्रूव्स, और इनकी जो टर्न्स है वो 0.3 नैनोमीटर जैसे हमने डिस्कस की। या फिर एंगस्ट्रम में हम देखें तो हमारे पास आ जाता है 34 एंगस्ट्रम। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। हमने प्योरीन्स एंड पायरामाइडिन्स को भी चेक कर लिया कि डबल बेंजीन रिंग है, सिंगल बेंजीन रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक हम इसे क्यों कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स, विच टाइप ऑफ एटम्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने 2 टाइप्स के बॉन्ड देखे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स is present in the backbone in the strands of both of these strands। जो हमारे पास 2 strands हैं उन दोनों की अरेंजमेंट में या उसकी सेटलमेंट्स में हमें फॉस्फेट एंड सेकेंड वी हैव डीऑक्सीराइबोस, पेंटोस शुगर की हम बात करते हैं। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड है इट इज़ नॉन एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। जबकि यहाँ पे इन बिटवीन दिस बेसिस के दरमियान में ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं एंड एडेनिन थायमिन के दरमियान
2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रेजेंस के मुतल्लिक भी मैंने डिटेल आपको दे दी। अब हमने देख लिया कि डीएनए टाइप्स कितने होते हैं। 3 टाइप्स है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए के अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, और इसकी अक्रेंस की बेस पे हम बात करते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, बी डीएनए को, और ये नॉर्मल सेलुलर डीएनए है। उसके बाद हमने एक और पॉइंट्स देख लिया कि हाउ इट रेप्लिकेट्स, किस तरीके से अलग होगा और किस तरीके से न्यू कॉपी डीएनए के बनेगी। ईच न्यू स्ट्रैंड में 1 ओल्ड स्ट्रैंड होगा एंड सेकेंड 1 न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होगा। उसके बाद फिर हमारे पास था कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल की इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स पे ये हेल्प करता है, जिस पे हमने जीन स्ट्रक्चर में देखा, डीएनए रेप्लिकेशन में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और इसके अलावा म्यूटेशंस में, बायोटेक की फाउंडेशन में, और हेरिडिटरी मैकेनिज्म में। नो ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर। अब हम देखते हैं कि डीएनए के यूजेस क्या हैं, इन हाउ मैनी वेज इट कैन बी यूज्ड, इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल को। तो डीएनए के मॉडल या डीएनए की आइडेंटिफिकेशन की वजह से दे हेल्प टू डिटरमाइन द इनहेरिटेड ट्रेट्स। सेकेंड, आप यू नो वेल अबाउट द फिंगरप्रिंट्स, सो डीएनए फिंगरप्रिंट्स हेल्प्स इन क्राइम डिटेक्शन। थर्ड हमारे पास आ जाता है, इट हेल्प्स इन जेनेटिक टेस्टिंग, पैटर्निटी टेस्ट, एंसेस्ट्री स्टूडेंट्स के जो काम आता है। इसके अलावा बायोटेक यूजेस डीएनए फॉर क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ऑन दिस बेसिस वी कैन यूज़ द डीएनए फॉर आर स्टडीज़, इनमें हम हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अलग से नाइट्रोजीनियस बेसिस को देखें, हमने काफ़ी डिटेल ले ली कि पायरीन्स में एडेनिन एंड गाइनिन है और पायरामाइडिन्स में थायमीन एंड साइटोसिन है। एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस विथ 2 फ्यूज्ड रिंग्स। अब हम इन्हें देखें कि किस तरीके से एडेनिन विथ 2 फ्यूज्ड रिंग्स, और इसमें हमारे पास जो थायमीन के साथ कंबाइन करते हुए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जबकि थायमीन जो है ये सिंगल रिंग है और इट बिलोंग्स टू पायरामाइडिन्स। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर्ड। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप में भी अगर हम देखें तो एक फॉस्फोरस एटम होगा और एक फॉस्फोरस एटम के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और डीऑक्सीराइबोज, यू नो वेल, इट्स ए 5 कार्बन शुगर। सो ऑल पॉइंट्स आर क्लियर्ड। एक दफ़ा फिर इन डायग्राम्स को, पिक्स को हम बहुत क्लोजली देख लेते हैं, and you should remind all these points. First, sugar phosphate in the composition of these strands. Nitrogen bases are present here as a step of ladder. 2 types of groove, major groove, minor groove. How many base pairs will be utilized? At least 10 base pairs for each turn. और टन में इसकी ये विथ जो है कांस्टेंट, ये जो ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू टी एंड जी ऑलवेज इक्वल टू सी, इसकी वजह से कांस्टेंट विथ आ जाती है हमारे पास। आई टोल्ड यू 3 ऑलवेज कंबाइंस प्राइम, 3 प्राइम ऑलवेज कंबाइंस विद द, या 3 रिलेट्स टू द 5 प्राइम एंड 5 प्राइम ऑलवेज कंबाइंस या रिलेट्स टू द 3 प्राइम्स। इट शोज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को जाहिर करते हैं, विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर में जो डायरेक्शन है उसे ये शो करेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स भी हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास, आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर रिपीटेड। ये यहाँ पे पायरीन्स पायरामाइडिन्स की डिटेल हमने देख ली कि पायरीन्स में कौन से रिंग है, हाइड्रोसाइक्लिक हम इसे क्यों कहते हैं। ये क्लोज करने का या विजिबल करने का मकसद यही है कि आपको स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन या नोट करना हो तो आपको समझ आ जाए इजीली। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स नज़र आ रहा है इन बिटवीन दिस नाइट्रोजन बेसिस, और ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन आपको शो हो रही है, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। और ये दरमियान में देखो ये बेस पेयर्स हैं, और यहाँ पे ये पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को इंडिकेट किया गया है।
और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ये जिसमें विथ शो की गई है, ये 10 बेस पेयर हैं कम से कम, और माइनर ग्रूव है, मेजर ग्रूव है, 3 and 5 अगेन रिपीटेड, एडेनिन थाइमिन गाइनिन, एडेनिन थाइमिन गानिन एंड साइटोसिन। लुक एट दिस, और यहाँ पे ये इसकी जो मेजरमेंट है वो 20 एंगस्ट्रम है, विद आई टोल्ड यू बिफोर, पहले भी मैंने आपसे ये डिस्कस की। इसके अलावा यहाँ देखिए 20 एंगस्ट्रम इसकी विद है, 34 टर्न पोजीशन, नाइट्रोजीनियस बेसिस इज मेजर माइनर ग्रुप अगेन रिपीटेड। उसके बाद यहाँ पे देखें ये इस तरीके से जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है देन दीज विल बी सेपरेटेड, ये अलग हो जाएंगे और न्यू टेम्पलेट को फॉर्म कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास ये लास्ट वन है जिसमें एक रिवीजन आप कर सकते हो, इसमें तमाम चीज़ें विजिबल हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन स्ट्रैंड्स ऑन बोथ साइड्स एंड इन बिटवीन दीज nitrogenous bases are present. So I think all points are cleared. थोड़ा सा मुझे हो गया कि सारे आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर हमने ये भी देख लिया इन हाउ मैनी वेज वाटसन एंड क्रिक मॉडल कैन बी जस्टिफाइड, हमने इसे किस तरीके से जस्टिफाइड किया। वी ऑल्सो डिस्कस्ड द DNA यूजेस इन आवर रूटीन लाइफ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज। सो ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, सो repeat it, listen it, and enjoy your studies. Goodbye.